for me it's my very first time and I'm so excited for that, guys. So before moving ahead, I would like to request you guys to subscribe my channel and like this video so we can make more such content, amazing content for you guys. And as you guys know that I made a video, my last video was about the US B1 B2 tourist visa interview experience, and I received my passport after 5 days. Like my passport got stamped and it came to my house in 5 days. So we're not going very far. We'll be going to Buffalo, New York. We'll start by exploring Elmwood Village, and then we'll go to Canal Side. We'll see what places around we can visit. And Pravesh wants to visit this ice cream place. Cold Stone. Cold Stone. Yeah, he always talks about that place, so we'll go that. We'll see how it is. So please stay tuned till the end of this video. It's going to be really interesting. Buffalo is just like 2 hours from Toronto. तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों इतना वेट करें ना, अभी है पासपोर्ट तो चलते हैं, करके आते हैं थोड़ा एक्सप्लोर. तो हम लोग अभी वही जा रहे हैं. We can't wait. We are so excited today. And also guys, I want to mention some important documents. तो हम लोगों ने हमारा वर्क परमिट कैरी किया है, हमारा पासपोर्ट कैरी किया है, आईडी कैरी किया है हम लोगों ने. मतलब अगर आप लोग कभी इफ़ यू गाइस प्लान to go to US after you get your B1 B2 visa, then you should carry these documents. And हमारे पासपोर्ट पे TRV भी है. It's Canadian Tourist Visa. ये Niagara Falls. Okay, so this is USA border, USA bridge. Bridge, yeah. Okay. Pravesh. I hope it's not too rushy today. No. Yeah. Arey no, it's not that busy. Nah. है ना? So there, guys, as you can see, it's Niagara Falls. So that's Niagara Falls. And let me just take my passport. Okay. That's our passport and work permit. We are not sure what this is, but we are assuming it's a toll. We'll see. These are documents. So this is Niagara Falls. This is the Rainbow Bridge which we crossed, and now we are in USA right now. Yeah. So we're crossing we are right here. the border, I guess. Yeah. This is the border. Yeah. So it's going to be our turn now. We've kept everything ready. So guys, we are in US now. We have already entered USA. So guys, this is Niagara Falls. This is USA side. And I think Canada side is much better. So guys, if you're traveling for the first time to the USA, you might not know this, but make sure that you have a data pack for US, because if your car is not equipped with the navigation, then you might have trouble navigating. Guys, this is the Peace Bridge. Okay guys, so we spotted a Tim Hortons in USA and we thought it's only in Canada. Lol.
guys, we are here charging our Tesla and we are going to wait for around half an hour. I'll just show you how it looks while charging. So it's charging and it's going to take around 40 minutes, as you can see. Right now it's 196 kilometer and we are going to charge it till 330 kilometer. So it's what time is it? It's 5 p.m. now and we didn't expect it to take so long on the border. हमें border पे ही around 2 घंटे लग गए. Like it was really unexpected क्योंकि ज़्यादा क्यू नहीं थी. मतलब हम लोग जब गए वहाँ पे तो it was really empty, तो लगा कि बस हो जाएगा अभी. बट हम लोग जब गए तो उन्होंने टिकट दिया एंड टिकट पे देयर वर 3 सेक्शंस, बैगेज कंट्रोल, लगेज कंट्रोल एंड एग्रीकल्चर कंट्रोल. ऐसे 3 सेक्शंस थे. सो हम लोगों का बैगेज कंट्रोल, एग्रीकल्चर कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंट कंट्रोल, ये 3 सेक्शंस थे. सो वी थॉट कि डॉक्यूमेंट कंट्रोल है, तो उन्होंने हमें बोला कि सीबीपी के 2nd फ्लोर पे जाना है. वहाँ पे बॉर्डर पे सीबीपी की बिल्डिंग थी, उसमें 2nd फ्लोर पे जाना है. सो वी वेंट देयर एंड देखा तो इट्स सो बिग क्यू. मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे अपने टर्न के लिए थे. वो अंदर ज्यादा ऑफिसर्स होते नहीं है, 2-3 ही ऑफिसर्स होते हैं एंड एक एक करके सब फैमिलीज को बुला रहे थे. सो मुझे लगा यार ऐसे एक एक करके बुलाएंगे, एक एक हार्डली 3-4 ऑफिसर्स है, उसमें से भी इतनी स्लो प्रोसेस, इतना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. ओ माय गॉड, हम लोगों को 1.5 घंटा लग गया वहां पे. वाज लाइक यार हो गया. एक दिन के ट्रिप के लिए आए थे, उसमें 1.5 घंटा तो वी स्पेंड ऑन वेटिंग फॉर आवर टर्न. ठीक है, 1.5 hour लगला ना, 1.5 hour अप्रॉक्स. सो बेसिकली हम लोग कार से बॉर्डर पे पहुंचे. वहाँ पे एक बॉर्डर ऑफिसर थी, उसने हमें पूछा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ विजिट, हम क्यों जा रहे हैं, लीजर के लिए जा रहे हैं, ट्रैवल और किसी को मिलने के लिए जा रहे हैं. तो हम लोगों का तो पर्पस लीजर था एंड हमें आज ही रिटर्न आना था, तो वी ऑल्सो स्टेटेड दैट. सो शी सेड कि आपको सीबीपी के बिल्डिंग पे 2nd फ्लोर पे जाना है. एंड वहाँ पे एज आई सेड उसने वो कार्ड दिया. वो कार्ड पे 3 चीजें थी, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, लगेज कंट्रोल एंड एग्रीकल्चरल कंट्रोल. डॉक्यूमेंट कंट्रोल था हमारा, तो शी सेंट अस ऑन द 2nd फ्लोर. 2nd फ्लोर पे बहुत लोग थे, टू मच भीड़. तो वहाँ पे हमारा टर्न 1.5 घंटे के बाद आया. तो उन्होंने बेसिकली हमें अंदर बुला के जस्ट हमारे पासपोर्ट, तो वो लेडी ने सीधा आई गेस उनको दे दिए थे, वो ऑफिसर्स को. तो ऑफिसर्स ने बस पासपोर्ट चेक किया, हमारा फेस देखा, इफ वी आर द सेम पर्सन गोइंग. हमारे फिंगर्स प्रिंट्स लिए, मेरे अगेन 4 फिंगर्स एंड थंब अलग अलग प्रिंट ले लिए, डिजिटल प्रिंट्स. फोटो निकाला एंड प्रवेश का आई थिंक सिर्फ 4 फिंगर्स. हाँ, सो उसका थंब नहीं लिया. ठीक है. एंड देन वहां से दे सेंट अस टू पे. वो पे किस लिए किया हमने? पे फॉर I-94 फॉर्म. सो अगर हम लोग कैनेडियन, हमारे पास पीआर नहीं है ना, कैनेडियन पीआर. अगर हमारे पास वो होता तो हमें वो प्रोसेस नहीं करनी पड़ती. हमें वो शायद ऊपर जाके इतनी बड़ी क्यू में वेट करके I-94 फॉर्म के लिए जो हमने $12 मतलब $6 ईच जैसे जो हमने पे किया, वो शायद नहीं करना पड़ता. वी कुड हैव डायरेक्टली लाइक वो बॉर्डर क्रॉस करके डायरेक्टली हम यूएस एंटर कर जाते. बट हम अभी फिलहाल स्टडी परमिट, वर्क परमिट, तो हमें तो और 1 साल है पीआर के लिए. तो शायद सभी को जो अभी वर्क स्टेटस या स्टडी स्टेटस पर है, उन्हें ये प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है. सो दे हैव टू गो, दे हैव टू पे फॉर देयर I-94. एंड अगर डिजिटल भी किया, हमने वो भी पूछा कि हमें हमारा टाइम सेव करना है, तो क्या हम घर से ही वो फॉर्म फिल करके आए. तो दे सेड कि नो, यू हैव टू डू इट हियर ओनली. तो मैंने बोला ठीक है, हमें वेट करना ही है मतलब. सो इट्स ओके, वी वेटेड, वी डिड दैट. तो कुछ नहीं, पे करके बाहर आ गए. फिर अभी यहाँ पर हम एल्मवुड विलेज जा रहे हैं, फिर वहाँ से कोल्ड स्टोन जाएंगे. ज़्यादा टाइम है नहीं कि हम अभी एक्सप्लोर करें, क्योंकि हमारा तो 1 डे ट्रिप था. एक ड्राइव जैसी हो गई हमारी. तो अब जाएंगे रिटर्न. अब
चार्ज करके जाएंगे. तो guys, on Friday we are going to Chicago for Thanksgiving. So please stay tuned, because this week, like the coming week, I'm going to post some cool videos. I'm going to travel a lot. We are going to travel to his uncle's place, so stay tuned. It's 5:30. Look at how dark it is already. So guys, we are here at Cold Stone Creamery. So this is Pravesh's favorite place for ice cream, apparently, and I also wanted to see what's special about it. So I tried it, but for me, I think Baskin Robbins is always better than anything. I did not like it much, but you can see, and you can see how Pravesh is super excited to have it. He's having his first bite after how many years? Last year I had. Last year. So after a year, 1 year. you are having this ice You cream. don't get this in Canada. Yeah. Is it yum? Amazing. Amazing. So this is a small town near Buffalo, and turns out like this places they are more happening in the summers or maybe in the daytime. I believe we are late, so it was a bit dull for us. But we did enjoy the drive together because we went on a long drive after a very long time, so it was fun for us. So guys, we are back home now. It was a short trip. Basically, we did not visit much places. हम लोग ज़्यादा जगह गए नहीं, क्योंकि हमारा इंटेंशन अभी के लिए था कि हम एक बार बॉर्डर क्रॉस करके देखें. हमें वो एक्सपीरियंस चाहिए था कि कितना हमें एक्चुअली टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि यूजुअली इट डजंट टेक मच टाइम, लेकिन हम लोग अभी प्रैक्टिकली वहाँ पे जाकर आए तो हमें पता चल रहा है कि इट डज टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो दैट इज़ वन थिंग. वो एक एक्सपीरियंस चाहिए था कि ऑफिसर्स क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, इज़ इट ईजी, और क्योंकि हम लोग ना बहुत सारे शोज़ देखते हैं जिसमें वी हैव सीन कि बहुत स्ट्रिक्ट होता है. यू नो, दे चेक योर डॉक्यूमेंट्स, दे चेक योर कार, आप कौन सा क्या सामान कैरी कर रहे हो आपके साथ, दे लाइक सारा कुछ देखते हैं वो लोग. तो हमें वो थोड़ा डर था कि यार, मतलब, और इतना भी हमने सुना है लोगों से कि वो बॉर्डर क्रॉस करते करते कितने तो लोगों का उन्होंने वीज़ा कैंसिल भी किया है. तो वो एक काफ़ी चीज़ें माइंड में थी. वी नो दैट हम लोग कुछ गलत तो नहीं करने वाले ऑब्वियसली, बट स्टिल वो एक थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस चाहिए था. सो दैट इज़ वाई हम लोगों ने ये शॉर्ट ट्रिप प्लान किया, एंड इट वॉज नाइस, इट वॉज फन. लाइक हम लोग इसको, प्रवेश को कोल्ड स्टोन का आइसक्रीम ट्राई करना था. उसने लास्ट ईयर कभी तो खाया था एंड ही वांटेड टू ट्राई इट अगेन, सो हम लोग वहाँ पे गए. एंड देन बफेलो में देर इज़ अ स्मॉल टाउन, एल्मवुड विलेज. वहाँ पे हमें थोड़ा सा लाइवली, बहुत हमने सुना है कि इट्स अ छोटा सा क्यूट विलेज. वहाँ पे यू नो, इट्स वेरी लाइवली, वेरी वाइब्रेंट एटमॉस्फियर. तो वो देख कर आए हम. एंड थोड़ा सा ग्रॉसरी शॉपिंग की ऑब्वियसली, क्योंकि यूएसए है यार, कनाडा से इट्स मच चीप. तो हमें वहाँ का वॉलमार्ट जाके देखना था, तो हम लोगों ने वो थोड़ा सा प्राइजेस चेक किए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, एग्जैक्टली कितना चीप है. बट नहीं, एक्चुअली चीप है. अगर कोई एकदम ऐसे नाइग्रा में रहता हो, जो यू नो जस्ट 15-20 मिनट्स मतलब बॉर्डर क्रॉस करके आ सकते हैं वापस, तो आई गेस वो मतलब जा सकते हैं वहाँ पे ग्रॉसरी शॉपिंग करके. मैं तो बोलती हूँ एवरी वीक वो मतलब 2-2 हफ्ते का ग्रॉसरी शॉपिंग करके आ सकते हैं यूएसए से, क्योंकि इट्स वेरी चीप यार. कनाडा में अगर हम शॉपिंग करें $100 की, तो वो ही अगर आप यूएसए करोगे तो इट विल बी इन $80, तो आपके $20 सेव हो गए. तो वाई नॉट, राइट? सो हमें बस वो देखना था. अभी मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट योर वीज़ा एंड टीआरवी के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सी सिचुएशन में आपके पास टीआरवी होना चाहिए. तो गाइज देखो, अगर आपके पास वीज़ा है, स्टडी वीज़ा, जब आप इंडिया से कनाडा आते हो तो आप स्टडी वीज़ा पे आते हो, राइट? तो वो सिचुएशन में आपके पास 1 साल का होता है या 2 साल का स्टडी वीज़ा होता है, राइट? तो वो सिचुएशन में आपको टीआरवी की कोई ज़रूरत नहीं.
So whenever you have extended any sort of visa, be it your study permit, be it your work permit, or if you are on an applied status, you need to have a TRV with you. Why? So for instance, if you're coming from India to Canada, you cannot show that I'm on my applied status or I have extended my visa now. This is one important thing for you guys to note down. They will definitely need you to show them some strong document, right? That will be your TRV. अभी लाइक जैसे हम लोगों ने एक बॉर्डर क्रॉस किया, तो बॉर्डर क्रॉस करने के टाइम पे इट डिड नॉट मैटर इफ़ वी हैव अ TRV और नॉट, बिकॉज वो बॉर्डर पे इतना चेक नहीं कर रहे थे. उन्होंने बस हमारा वर्क परमिट, स्टडी परमिट देखा. दैट इज़ ओके फॉर देम. बट इवन वाइल क्रॉसिंग योर बॉर्डर, अगर अप्लाइड वीज़ा है देन यू नीड टू हैव अ TRV. से भी प्रवेश के सिचुएशन में ही इज़ हैविंग अ वर्क परमिट विथ हिम, एंड वर्क परमिट लाइक it's not on your passport, right? You have a document for that. It's not a visa. It's a permit. Tourist visa is something that will help you enter the country. Okay, work permit is not a visa. It's just a permit. बहुत ज़्यादा common question and confusion बहुत लोगों में मैंने ये देखी है. सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि अगर आप कोई भी एक्सटेंशन पे हो, कोई भी वीज़ा एक्सटेंशन पे या अप्लाइड स्टेटस पे हो, देन प्लीज़ गाइज मेक श्योर यू हैव अ टूरिस्ट वीज़ा. टूरिस्ट वीज़ा आपको जो कैनेडियन TRV होता है वो आपको तब तक ही मिलता है जब तक आपका कनाडा में वर्क वीज़ा है. जैसे अगर आपका 3 साल में वर्क वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो आपको 3 साल का वो लोग टूरिस्ट वीज़ा दे देते हैं. गॉट इट? इट्स वेरी सिंपल बट बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है लोगों को ये. So now let's talk about my experience while crossing the US and Canada border. So I'll also share the questions that they asked me. Questions were very simple. दोनों time while going to USA and while coming to Canada, both time the immigration officer only wanted to check what is my status in Canada, if I have the right visa with me. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप USA जा रहे हो तो आपके पास B1 वीज़ा होना चाहिए, आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. आप कनाडा में स्टडी परमिट पे हो या वर्क परमिट पे, वो आपके डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए. एंड आपका एक आइडेंटिफिकेशन G1 G2 वट एवर यू हैव, और आपका पासपोर्ट तो होता ही है, राइट? सो यू नीड दैट. क्वेश्चंस उन्होंने हमें ऐसे पूछे कि हमने वहाँ से आते वक्त डिड वी बाय एनीथिंग, तो वो हमें बेसिकली डिक्लेयर करना पड़ता है कि यू नो वी बॉट दिस मैनी थिंग्स. दे विल ऑल्सो चेक वॉट हैव यू बॉट. वो रिसीप्ट्स आपको आपके साथ कैरी करने पड़ते हैं. सो वॉट एवर इट इज़, बी ऑनेस्ट अबाउट इट. ओके, सो वन मोर थिंग विच आई नोटिस्ड, अगर आप PR स्टेटस पे आते हो या आपके पास ऑलरेडी PR है, आप USA जा रहे हो, तो यू नो जो मैंने पहले बताया था कि दे सेंट अस टू अनदर CBP बिल्डिंग, एंड वहाँ पे उन्होंने हमसे I-94 फॉर्म, डिजिटल फिंगर स्कैनिंग, फोटो, हमारे डिजिटल फोटोज़ जो लिए. इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम क्योंकि वहाँ पर उस दिन रश था. बट अगर आप PR स्टेटस पर हो तो लाइक दे माइट नॉट आस्क यू टू डू ऑल ऑफ इट, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने तो नहीं किया. बट या इट्स नॉट द केस ऑलवेज, because if they are suspecting you for anything then they might ask you to do that. But most of the cases में ऐसे मैंने देखा है कि लाइक मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे बोला था कि उन्होंने ये सारी यू नो हेडेक उनको नहीं, ये हेडेक के थ्रू उनको नहीं जाना पड़ा. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. अगर आपको मेरा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा, देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन, बिकॉज इफ़ यू डू दैट आई नो कि आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है, एंड देन आई ट्राई टू मेक मोर ऑफ similar content videos for you guys. So please do that and stay tuned. Okay guys, bye, take care.